अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम लेक्चर करने जा रहे हैं, वो होने वाली है एज अ मुस्लिम आई हेटेड नरेंद्र मोदी अंटिल अदर मुस्लिम एजुकेटेड मी अबाउट हिम। यार ये जो थिंकिंग है ये मोस्टली पाकिस्तानी लोगों की है कि मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। आरएसएस जो है वो मुसलमानों पे जुल्म करती है। आरएसएस बनी ही हिंदू जो है वो पार्टी मुसलमानों को मारने के लिए। आरएसएस जो है जो कि एक बात थी, पहले लोगों में भी थी और लोग ऐसा मानते थे जो अदर रिलीजन के थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, इस तरह करके लोग जो थे ना वो मानते थे। और ये सब्ज़ी वाला आ गया, उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या सीन है, किसने इनको चेंज किया, क्या चीज़ ने चेंज किया। लेट्स स्टार्ट। Few things I would like to say about PM Modi. So I personally, I was a kid, when the Gujarat riot happens, and I got carried away, and I hated him for a long time. Oh. That this man, because of him, so many Muslims died and whatever. Then I started observing, I started communicating with people, and then I realized my eyes opened up that there's so much of propaganda by the media, and they are demonizing him. And when I started understanding from Muslims in Gujarat, they have come forward and told the amazing development that has happened in Gujarat. And after that, you see, Gujarat has been very peaceful after that first riots. If a man was truly intolerant and if he was a dictator, let us ask ourselves, would people vote him again and again for two consecutive terms? No, right? So that itself is a big, he does not have to say anything much. His work and the very fact that people brought him back, including the Muslims, is a testimonial that he is a truly tolerant man, and he's done great work in Gujarat, and that's why we brought him back to lead the nation as a whole. And we need to give him a chance. We have given him a chance, and we need to give him a chance further also. And I see tremendous growth happening in the last 4 years, despite all the chaos and all those things, so much being thrown at him repeatedly. No prime minister has received so much of flack like him. It's really sad. For what? For bringing yoga forward? I mean, really? Things like this, for bringing yoga, for being a proud Hindu, for what he stands for bringing pride in his people, for bringing pride to being an Indian, for talking good about India on international platform. I think we are so used to being felt like we are no good losers, for so many years and years and years, that now suddenly when someone comes and tells us the opposite, we are not able to hajam nahi ho raha, it's becoming indigestion for us. So I think we need to first change our mindset and understand what he is trying to bring in. सीटी मीडिया बहुत अच्छी वीडियो थी यार, और सोफिया रंग वाला ने किया है ये, और पारसी हैं ये मेरे ख्याल से, हाँ पारसी हैं, गुजरात में रहती थी। तो ये कह रही थी कि इनका जो है वो सीन ऐसा था कि ये शी यूज्ड टू हेट नरेंद्र मोदी, और एवरीवन यूज्ड टू हेट नरेंद्र मोदी अंटिल कि इनका सीन थोड़ा हुआ है। नॉट एवरीवन, आई वुड से कि गुजरात में जितने लोग हैं, जो गुजरात राइट्स हुए थे, वहाँ पे दंगे हुए थे और डेथ्स हुई थी मुस्लिम्स की, और उससे लाइक कह रहे थे कि सारा जो है ताल्लुक़ नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं और आरएसएस के मेंबर हैं। आरएसएस तो करता ही मुसलमानों पर जुल्म है, ये वो, इस तरह करके बातें हो रही थी। और अब ये गुजरात में यार देखो, एक बंदा जब इतने कत्ल कर रहा है, इतना कुछ गलत कर रहा है वहाँ पे, तो मेजोरिटी क्यों पड़ रही है इनको बीजेपी को मेजोरिटी क्यों पड़ रही है हर साल? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आप जो भी स्टेट उठा लो, हर स्टेट में इनको मेजोरिटी पड़ रही है और कांग्रेस का नाम ही नहीं है। लेकिन बातें करने वाले बातें करेंगे कि भाईजान ये इस तरह, ये इस तरह, वो अपने आप को कहते हैं सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर, वी आर सेक्युलर। मुसलमानों को लेके चलते हैं कि ताकि हमें सपोर्ट मिले, ठीक है। जो कि एक जो होता है ना रिलीजन का जो एक फसाद होता है, वो बहुत गलत होता है। उसमें बहुत ज़्यादा जंगें होती हैं, जंगें कह रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फसादात होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, नज़र नहीं आता इंसान को कुछ। तो वो वाले फसाद में ये लोग फंसाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की डेवलपमेंट करवाई है कंट्री में,
जीडीपी देख लो, इकॉनमी देख लो आप अपनी, उसका उसके अलावा इंटरनेशनल मंच पे आप अपने स्पोर्ट्स देख लो आप, उसके बाद टूरिज़्म देख लो, उसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें देख लो, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस देख लो आप, डिजिटल जो इंडिया जो है उसमें साइबर सिक्योरिटी देख लो आप, उसके अलावा ट्रेड देख लो, एक्सपोर्ट देख लो, हर चीज़ बड़ी है। और लोगों को गैस पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, रोज़गार देना, हर चीज़ बड़ी है कि उनको फिंगर टिप्स पे ये बातें याद हैं कि ये हमने 12 करोड़ लोगों को ये किया, 1 करोड़ लोगों को गैस दी, 25 करोड़ लोगों को ये दिया, इतने लाख लोगों को लोन दिया, ये सब कुछ माफ़ किया, इनका सब कुछ फिंगर टिप्स पे याद है उस बंदे को कि क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे बंदे को आप क्यों वो गलत चीज़ों में डाल के उनको वो करना चाह रहे हो, उनका डीमोटिवेट करना चाह रहे हो। वैसे तो डीमोटिवेट नहीं होते, 1.3 करोड़ लोग उनके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंट्री के, और वो डीमोटिवेट नहीं होते, ये मुझे पता है पूरी तरह। और वो अप्रिशिएट करते हैं क्रिटिसिज्म को, लेकिन कोई भी बंदा जो है वो जाता नहीं है। तो ये मतलब कि सीन ऐसा है, ठीक है। और ये लोगों का वो हो जाता है कि मुस्लिम जो है वो नरेंद्र मोदी हेट मुस्लिम, और ये जो है मुसलमानों को मरवाते हैं, सारा कुछ ये बातें आती रहती हैं, लेकिन ये इनसे वो जो है वो काम बता देते हैं। कल हमने देखा कि जो मुसलमान थे मोस्टली, वो जो नरेंद्र मोदी का जो वो उन्होंने मोदी की दुकान, वो मेडिकल स्टोर खोला है, उसमें एक मुस्लिम जो लेडी थी वो सारी चीज़ें बता देती हैं कि भाईजान कुछ नहीं है, ये बातें हैं सिर्फ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 1 2 3